Good morning. Okay, sit down you all. So, in this class, I will teach you about the variation. I think already I have started this chapter. So, variation means when two different things they vary with each other. अच्छा, मैं अभी एक ये करता हूँ. अच्छा, तुम लोग जब छोटे थे, तुम्हारा एज और तुम्हारा वेट कम था. अभी 10-15 साल के बाद मीन्स एज, व्हेन योर एज इंक्रीजेस योर वेट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है ना. तो ये जो एज एंड वेट, अगर एज भी इंक्रीज होता है तो वेट भी इंक्रीज होता है. सो these two are varying with each other, and this type of variation is called the direct variation. So variation are of two types. Variation, already I have said all these things about to you. Once again I am just giving you a recap. So variation are of two types. One is direct variation, and other is inverse or indirect variation. Okay. So as I said you, direct variation, when one thing will be increased, the other will be increased. I am giving you 2-3 examples upon it. Now I said you, if your age will be increased, your weight also will be increased. Suppose when you are 2 years old, suppose Bali, when Bali was 2 years old, at that time his weight was maximum weight 15 kg or 20 kg like that. Now he is how many years old? 13? 20? Oh. So now he is 12 years old. Definitely his weight also has been increased or not. Suppose maybe it is 42 kg. Definitely. So when age is increased, weight also increased. So this type of variation is called the direct variation. Okay. Another example I am just giving you upon this direct variation. Suppose you had gone to market to purchase the mangoes. The shopkeeper said, one mango, if you will purchase one mango or 3 mangoes, for 3 mangoes shopkeeper said to pay rupees 50. But you said no, I will take 20 mangoes. So if you will bring 20 mangoes, then 50 rupees से ज़्यादा तुम पैसा दोगे या कम दोगे? जब डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ मैंगोज, ज़्यादा मैंगो खरीद करके लाओगे और पैसा क्या कम दोगे क्या? पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा ना. तो the value, this cost of mangoes also will be increased, and it is approximately 320. It will be increased. So when the number of mangoes it is increased, the cost of the mangoes also it is increased. And this is here also, both are increasing. If both will increase or both will decrease, then that type of variation is called the direct variation. And another type of variation, that is inverse variation. When one will be increased, other will be decreased. I am giving you examples. Here one example. Suppose I want to complete a work. I have taken 20 laborers. I have taken. When I am taking 20 laborers, I am seeing that
द वर्क इज कंप्लीटेड इन 5 days। 20 लेबरर्स को लेकर मेरा काम 5 दिन में खत्म होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे मीन्स क्विक वो काम को खत्म करना चाहिए। तो नंबर ऑफ लेबरर को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर मेरा मैंने सोचा नहीं, मुझे 3 दिन में काम करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है, मेरा हायर अफसर सेड नहीं अब 3 दिन में काम खत्म कीजिए। तो मैं अगर 20 लेबर लेकर काम करूंगा तो मुझे 5 दिन लग जाता है काम खत्म करने के लिए। तो 3 दिन में अगर मैं खत्म करूंगा तो नंबर ऑफ लेबरर्स विल बी इंक्रीज्ड। सो ये जब डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ लेबरर्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेबरर्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। सो ये नंबर ऑफ डेज जब कम होता है तो नंबर ऑफ डे ये क्या होता है, ये डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है। When one is decreased, other is increased. When one is decreased, other is increased. ये डिक्रीज करता है। और एट द सेम टाइम इफ दिस विल बी इंक्रीज, अंडरस्टैंडिंग सरिषा क्या नाम है, हाँ राधिका, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन is called the inverse variation or indirect variation. Already the exercise based upon the direct variation, that is which exercise? 9A. Well, already we have completed. But Mukta, which question was your doubt? Question number 10. So this exercise 9A, which already I have completed, but still for the doubt of Mukta, I am doing this question number 10. So question number 10, everybody open and write in your class work copy. The cost of 19 jam bottle, 19 jam bottle, 19 jam bottle, cost of 19 jam bottle, कितना cost है? Now it is 617 rupees. 617 rupees 50 paise. पूछा कि how many jam bottles can be brought for rupees 1040? तो कितना जाम बटल, वी डोंट नो, लेट एक्स जाम बटल, लेकिन पैसा कितना पैसा में मैं लाऊंगा? 1040। अगर ज्यादा पैसे से मैं लाऊंगा जाम तो मुझे जाम बटल्स ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? पैसा अगर ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ जाम बटल ऑल्सो आई विल ब्रिंग मीन्स मोर, यस और नो? तो एज इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करोगे? देखो ठीक से देखो, अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो I can do like this, this by this is equal to this by this. यहां जैसे मैं जा रहा हूं यहां वैसे ही मैं जा रहा हूं। तुम ऊपर से नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो, लेकिन बोथ वे सेम होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मैं क्यों नीचे से ऊपर गया? क्योंकि मुझे x चाहिए, x मुझे ऊपर में चाहिए, इसीलिए मैंने यहां से यहां तक गया। सो x by 19 इज इक्वल टू दिस बाय दिस। और ऑल्सो तुम ये भी कर सकते हो, दिस बाय दिस, दोनों ये आंसर करेक्ट आएगा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये भी कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू रिवर्स, दिस बाय दिस, ऐसे ही करोगे। मैं करूंगा एक्सरसाइज में। तो हियर दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो x by 19 is equal to 1040 by 617.50। ये जीरो को हटा दो, कोई बात नहीं ना। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये 1040 बाई ये जो 6175.5 है, आई कैन राइट इट इज 6175। ये जो बाई 10 मेरा आ जाता है,
क्या करूंगा, मैं ऊपर से लेकर उसको इंटू कर दूंगा, क्योंकि डबल डिवीजन यहां है ना, दिस बाई दिस अगेन। सो ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? रिकॉर्डिंग क्लास। तो this is, now I need x only, so therefore x is equal to 1040 into 10, और ये जो 19 है वो भी ऊपर चला जाएगा इंटू होकर, और नीचे है मेरा 6175। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो है ना, आई थिंक ये कट जाएगा, डायरेक्टली डिवाइड कर लो। 6175 को डायरेक्टली 19 में डिवाइड कर लो, तो डायरेक्टली ये 19, दिस इट इज कैंसल, दैट इज 325। 325। नाउ 5 में कैंसिल कर लो, 5 में कैंसिल कर लिया तो 65, और इसको 5 में कैंसिल कर लिया तो 2। नाउ ये जो 65 और ये जो 1040 कोशिश करते हैं, ये भी कट जाएगा। बाई 13 आई कैंसल इट इज 5, बाई 13 इट इज 80, और ये 16 को 80 भी काट सकता है, दैट इज 16। अंडरस्टूड? How by the numbers, smaller numbers I cancelled to the numerator and also to denominator. So finally 16 and 2. So 16 and 2 that is equal to 32. तो x का वैल्यू मुझे मिल गया। So in 1040 rupees we can brought 32 jam bottles. फाइनल स्टेटमेंट्स ऑलवेज यू मस्ट राइट। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मस्ट बी रिटन गिविंग द देयरफॉर सिंबल। देयरफॉर इन ₹1040 32 jam bottles, 32. Don't hesitate to write. Actually, the students they don't write all these things. Who is writing? But it is important always in ₹1040, because what is question is asked and you have to give that answer. In 1040, 32 jam bottles can be brought. Well, you understood? Any other question? Sir, 13 number. Question number 13. Write quickly. Finished? Yes, sir. अच्छा, very good. तो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे ही क्या दिया है ना, 4/9 of a piece of iron sheet weighs 7 kg. What would be the weight of 3/7 of the iron sheet? Yeah. So पहले मुझे कहो 4/9 ज्यादा है या 3/7 ज्यादा है? Which is bigger? 4/9 ज्यादा है या 3/7 ज्यादा है? Which is bigger? In these two fractions, which fraction has the bigger value? Huh? Bali Semi, how you said it is 4/9? He said इसलिए, that's why you are saying. Semi, ask. Quick. The numerator of the numerator of 4/9 is the numerator of 4/9 is greater than the 3 and also the denominator. Not that the way. Who can say? So, Sumit? Yes. By cross multiplication. 7 into 4 that is 28, 9 into 3 that is 27. Now ये जो 27 से ज्यादा है, और 28 मेरा लेफ्ट साइड में है, so that's why
this is greater than this one. By cross multiplication and knowing the result, accordingly we can say which is more and which is less, which is greater, which is smaller. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 28 देता है, ये देता है 27. 28 27 से ज़्यादा है, इसीलिए that's why this fraction it is greater than that fraction. तो अभी आओ क्वेश्चन को, ये समझना चाहिए. सो 4/9 पार्ट, 4/9 पार्ट ऑफ ए आयरन शीट का वेट है 7 kg. ये वैल्यू लेस है, तो जब 3/7 पार्ट मीन्स लेसर वैल्यू का वजन लेस होगा या मोर होगा? दैट्स वाई पहले हमको मालूम होना चाहिए ये दोनों से इसका वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू कम है इससे, तो ज़्यादा वैल्यू का वजन था 7 kg, लेस वैल्यू का, लेस पार्ट का वजन क्या होगा? लेस ही होगा. आई डोंट नो व्हाट इज दैट वेट, लेट दैट बी x kg. लेट यू विल राइट लेट द वेट ऑफ 3/7 part of iron sheet. What you are writing or not, Mukta? Yes, sir. Or you have said me just I am writing, you are writing? Okay. Let the weight of 3/7 part of iron sheet is x kg. Then come to question. ऐसे लिखना चाहिए. पहले ये देखोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद अभी हम अप्लाई करेंगे. यू विल राइट लाइक दिस. एज इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिखना पड़ेगा. एज इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, therefore x/7 is equal to this by this. डायरेक्ट में जा रहा हूं मैं. सो therefore x/7 is equal to, तुम कुछ भी ले सकते हो. this by this is equal to this by this, same thing. this by this is equal to this by this, same thing. but this by this डायरेक्ट में नहीं होता है, वो होता है इनवर्स में, इनडायरेक्ट में. यहाँ डायरेक्ट है इसीलिए this by this is equal to this by this, same answer you will get. this by this is equal to this by this, also same answer we will get. So I am writing x/7 is equal to 3/7 by मतलब डिवीजन क्या है? 4/9. मैं बाई जो डिवीजन, ये जो बाई है ना, मैं बाई को डिवीजन बना के लिख दिया क्योंकि मेरा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. सो दैट इंप्लाइज x/7 is equal to 3/7 into 9/4. Good, very good. So 9/4, or that is equal to 3 into 9, that is 27 by 7 into 4, that is 28. तो x/7 is equal to 27/28, x/7. लेकिन हमको चाहिए सिर्फ x, so therefore x is equal to 27/28. ये जो नीचे 7 था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इंटू हो जाएगा, और ये 7 ये कैंसिल कर दिया 4. नाउ इट इज इक्वल टू 27/4 kg. उसको you can just make it to decimal also. So this is equal to 6.375 kg. After division you will get 6.375 kg. ठीक है ना? आई एम थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ. सॉरी, ये हाँ, यस, 6.75 होगा ना? हाँ, 6.75. थोड़ा सा डाउट आया ना मेरा, इसीलिए 6.75 kg. ओके, तो आंसर ठीक है ना? लुक, सी द आंसर. नाउ
we will go to the next exercise, which is based upon indirect proportion. फ्रैक्शन में रखा है, फ्रैक्शन में रखा होगा 6 whole 3/4 kg. Same thing. Now exercise 9b, exercise 9b, which is completely based upon the indirect proportion. I am doing 2 questions upon it, and I will give you some homework to you. Then finished? Amlan finished? Ashish? Last, do write quickly. अरे स्पीड में काम करो, कोई नहीं पूछेगा. धीरे धीरे अगर करके जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा. Nobody will ask you. 10 स्टूडेंट्स बैठे, स्पीड में करके दिखाओगे तो तुम्हारा इंपोर्टेंस रहेगा ना. ऑलवेज आई एम सेइंग द सेम थिंग. ओके, नाउ एक्सरसाइज 9b, जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ऊपर ही बेस्ड है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है m varies inversely as d. अच्छा, m varies inversely as d. सो ये है m, ये है d. इनवर्सली वेरी करता है. अंडरस्टैंडिंग? इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन दिया है. अच्छा, m का वैल्यू क्या दिया है? m is 12 men. सो m का मतलब है 12 men. d का मतलब दिया है 10 days. फिर फाइंड m. सो ये m का एक वैल्यू हम निकालेंगे. वी डोंट नो, लेट दैट बी x. ओके, लेकिन सेकंड d वैल्यू क्या दिया है? सेकेंडली 8 days. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा. 12 men can complete a work in 10 days. How many men will be required to complete the same work in 8 days? ये क्वेश्चन बन सकता है. वो ऐसे ही शॉर्ट कर ली, वो करके दे दिया. ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वी कैन राइट x/12 is equal to, I am going in this way, so that side I will come in this way. Yes, so it is 10/8. x/12 is equal to 10/8, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है. श्रेया अंडरस्टैंडिंग? तो अभी x का वैल्यू चाहिए. सो तो x इज इक्वल टू, ये नीचे है, इंटू हो जाएगा. सो 10 into 12/8. By 4 it is cancelled, 2 by 4 it is cancelled, 3, 2 is cancelled with this one, 5, so this is equal to 15. x का वैल्यू मिल गया. That means if 15 men will be employed, then the work will be completed in 8 days. ये है आंसर. तो डायरेक्ट में जैसे भी तुम लोगे, नो प्रॉब्लम. दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. नहीं तो तुम अगर लोगे ऐसे, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे, इस साइड में भी वैसे ही लोगे. लेकिन इनडायरेक्ट में यहां जैसे मूव करोगे, यहां उसका उल्टा डायरेक्शन में मूव करोगे. दैट्स ऑल. अंडरस्टूड? यस. देन सो x का वैल्यू 15 है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 तो वही सेम है, नंबर ऑफ वर्कमैन एंड डेज सेम है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. इन ए कैंप देयर इज एनफ फूड 420 स्टूडेंट्स फॉर 30 days. तो 420 स्टूडेंट्स के लिए, हमारा हॉस्टल में 420 स्टूडेंट के लिए खाना कितना दिन के लिए खाना था ना? 30 days के लिए था. 30 days के लिए था. लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हमारा हॉस्टल को. सपोज कुछ अलग स्टूडेंट आ गए हमारा हॉस्टल को. सो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज्ड, तो जितने दिन के लिए खाना था, ये खाना और ज़्यादा दिन जाएगा या लेस दिन जाएगा? मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, देन द नंबर ऑफ डेज
it is decreasing, means it is in indirect proportion. तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गए ना, 600 स्टूडेंट्स पूछ रहा है क्वेश्चन कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड स्टोर्ड बी टू बी एनफ, मीन्स कितना दिन तक जाएगा, लेट x डेज के लिए जाएगा। जो हमको मालूम नहीं, जो पूछा है क्वेश्चन में, उसी को वैल्यू x ले लो। फिर देखो कि वो डायरेक्ट में दिया है, क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, वो सोचना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हिसाब से हम जा रहे हैं, तो तुम जान लेते हो कि हाँ ये तो डायरेक्ट का मेथड आएगा क्योंकि चैप्टर में वही है। लेकिन एग्जाम में तुमको सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। तो हियर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन इट इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेज, ये तो कम ही दिन जाएगा ना, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो दिस बाय दिस, तो x बाई 30 इज इक्वल टू हाँ, क्या ओनली मुक्ता ही है इस क्लास में और कोई नहीं है क्या? हाँ, again and again I said you, if you will move in this way then you will come in this way, reverse direction में। तो x बाई 30 इज इक्वल टू 420 बाई 600, 0 कट गया। अभी मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू, यहाँ 42 था, ये 30 इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 था पहले से, तो 30 कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया 21, तो x का वैल्यू 21 मिल गया। मतलब इफ 600 स्टूडेंट्स विल कम, देन वो जो खाना था वो कितना दिन तक जाएगा, 21 डेज में खत्म हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। ओके, सो देयरफॉर द फूड विल लास्ट फॉर 21 days. ओके, तो बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9B में, ये सब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जो भी पूछा जाएगा उसी का x ले लो, इनडायरेक्ट में है तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा x का वैल्यू, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई डिड 2-3 क्वेश्चंस अपॉन इट। तो बाकी जो क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, it is homework for you, you do it. If you will have any doubt you can clear it in next class. Okay, okay, yes sir. क्या नाम है? हाँ, सुमित। Okay then, so we will meet again once again in next class. Till then you definitely you do it and show me in next class. Okay, thank you.